So, good morning students. Today we'll start the next organic chemistry, 11 chapter number 11, alcohols, phenols and ethers. It is also coming in your half yearly. So, alcohol and phenols, what are the definition if you will say, they are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon, aliphatic and aromatic respectively is replaced by which group? OH group, है ना. अगर एलिफेटिक है तो अल्कोहल्स आ जाएगा और अगर एरोमेटिक कंडीशन है तो फेनॉल आ जाएगा. ओके. An alcohol contains one or more hydroxyl group directly attached to the carbon atoms of an aliphatic system, and while a phenol contains OH group directly attached to carbon atoms of an aromatic system. ठीक है. तो now we will discuss about which one, what are their categories and how they are divided. And regarding their actually properties, preparation and properties. Okay, reactions also. Now we are coming classification. So classification of compounds, how we can classify that one? A mono, di, tri or polyhydric compound, and as well as the compound containing, first one is coming about their what is the number of their alcohol, actually OH group, and compound containing the sp3OH, and that is then next one is coming in case of allylic, and next one is coming about the benzylic, next one compound containing CsP2OH. means phenol के बारे में बात करेंगे. तो okay, one by one we'll start. First one, how we are classifying, है ना. तो first one, it on the basis of which one? Mono, di and tri, poly. Mono, di, tri, poly. So one by one we'll give the example here. Suppose C2H5 or CH3OH. So what will be that? That is actually methanol. So here it is coming about which one? Monohydric, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, polyhydric नहीं, monohydric condition. This one is coming about the monohydric. Okay. Second one we are coming for the glycol, CH2OH and CH2OH. So this is called dihydric condition. दो OH ग्रुप है तो इसका हम क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रिक, और इसका नाम क्या है? ग्लाइकॉल. इसके बाद ट्राइहाइड्रिक कंडीशन, ग्लिसरॉल बहुत बार पढ़ चुके हो आप. CH2OH, then CHOH, then CH2OH. Okay, so this is coming about which one? Glycerol. Glycerol, this is actually trihydric condition. Trihydric, this one is coming about the dihydric condition, and one more is also coming alditol. Their polyhydric condition is there, CH2OH and CHOH whole 4, and it is coming again CH2OH. So it is coming about the alditol. They are known as which one? Polyhydric condition. ठीक है. So first we have divided the category into which one? Mono, di, tri and polyhydric condition. Second, we are dividing by which one? Compound containing sp2OH. Compound containing, first हम sp3 बता देते हैं. sp3OH ग्रुप. कार्बन की कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3. तो इस कंडीशन में हम पहले डिवाइड कर लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना. पहले हम डिवाइड कर लेते हैं व्हिच वन? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary. So one by one, primary means which one? The alcohol group attached with the carbon, that is only that is attached with the single carbon there. So an example we are saying here, CH3 CH2OH, है ना. So CH3 CH2OH, that is ethanol condition. So that is this carbon where the OH group is attached, that is attached with one carbon here. So that's why it is coming about the primary. This is coming about primary, and it is coming about the 1 degree. So primary is over. Now we are coming for the, all are coming for the CsP3OH, है ना. तो primary is over. So after primary, what is coming here? Secondary. Secondary में what is coming now? Secondary condition. Secondary. So that is actually called as 2 degree. So in that sense, we are writing here CH3, CH, CH3 and OH. So this is the carbon which is biturn attached with other 2 carbon. That's why it is called the secondary carbon. That is propane. What is the name of this compound? Propane 2-ol, and this is actually secondary.
टर्शियरी में क्या हो जाएगा, टर्शियरी में जस्ट C के साथ OH एंड हियर इट इज कमिंग CH3, दिस इज कमिंग CH3, दिस इज कमिंग CH3. तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी. व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड हियर, 1 2 3. So it is coming 2-methyl and 2 और propanol we can say, है ना. 2-propanol भी आप बोल सकते हो, और we can say about the 2-propanol. So it is coming about which one here, 3 degree condition, that is called tertiary. Okay, so these are the name of sp3 hybridized one. Next one we are coming for allylic, है ना. allylic condition में क्या हो जाता है, that is actually coming about when the carbon is attached, means sp3 carbon, but it is attached just next to, OH is attached with the sp3 carbon but which is next to double bond, not with the double bond. जैसे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे allylic carbon CH2 double bond CH and CH2 OH. Okay, so this is actually called about which one, primary. Why it is primary? Now here allylic, this one is sp3 hybridized carbon and this is attached with one carbon here, but this carbon sp3 carbon is next to double bond, that's what is primary condition, allylic condition. Second one is coming about the CH2 double bond CH, C, here H is coming, here CH3 is coming, and here it is coming OH. So this is also one more allylic condition, but it is secondary, 2 degree. Why? Because carbon which is attached with OH, that is by turn attached with again more carbon there. So what will be the name of this compound here, 1 2 3 4. So it is coming 2 1 2 3 and 4. So what is coming there, bute, bute condition, and 3 in, and it is coming 2 all. Okay, and what is the categorization, that is 2 degree, है ना, 2 degree. and 3 degree condition कब आएगा ना, बस वही है CH2 डबल बॉन्ड CH, C के साथ आप CH3 दे दो, यहाँ पे CH3 दे दो, यहाँ पे OH दे दो, तो हो गया 3 डिग्री कंडीशन. और इसके नेम क्या आ जाएगा, 2-methyl प्रोपेन, 2-methyl ब्यूट, 3 in 2 all, है ना, 1 2 3 4. सो ये 2 पोजिशन में क्या आएगा, मिथाइल. सो 2-methyl एंड देन इट इज कमिंग ब्यूट 3 in, है ना, and 2 all. Okay now. So okay, so ब्यूट 3 in 2 all, it is coming here 3 degree. अच्छा, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द बेंजाइलिक कंडीशन. बेंजाइलिक में भी वही है कि बेंजाइलिक अल्कोहल, इसमें भी sp3 वाला कंडीशन आ जाएगा. तो कौन सा है, ये है बेंजीन रिंग, इसके साथ आप CH2OH, है ना. तो ये जो कार्बन है दैट इज एक्चुअली sp3 बट इट अटैच्ड विद नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड. सो इट इज एलिलिक कंडीशन, बट इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, है ना, बेंजाइल अल्कोहल. तो इसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे. नेक्स्ट वन अगर 2 डिग्री आपको लेना है, बस उसके साथ ही आप अटैच करते जाओ, है ना. C यहाँ पे आप H दे दो, और यहाँ पे CH3 दे दो, और यहाँ पे OH हो जाएगा. तो क्या आएगा आंसर इसकी ना, 1 and 2. सो 2 पोजिशन में इट इज कमिंग हेयर 1 2 नहीं, 1 2 आएगा. दिस वन इज, दिस वन, दिस इज 2 बिकॉज OH इज अटैच्ड हेयर. सो इट इज कमिंग अबाउट द 1 phenyl and it is coming about the 1 phenyl, and then it is coming ethanol. Okay, so it is coming 1 phenyl ethanol and it is coming secondary condition. Secondary means which one, 2 degree. Clear now. And अगेन अगर आपको 3 डिग्री करना है बेंजाइलिक कंडीशन में, बस कुछ नहीं, यहाँ पे CH3 दे दो, यहाँ पे CH3 दे दो, यहाँ पे OH दे दो. तो यहाँ पे ये नाम क्या आ जाएगा ना, 1 2 3, दैट मीन्स 2 phenyl, है ना, 2 phenyl एंड उसके बाद 2 प्रोपेनॉल. ठीक है ना. तो बस ये हो गया आपकी ये 3 डिग्री वाला कंडीशन आ गया आपकी टर्शियरी. तो ये हो गया बेंजाइलिक कंडीशन, बट एलिलिक कंडीशन इज व्हिच वन, बेंजाइलिक, बट इट इज आफ्टर डबल बॉन्ड एंड sp3. हाइब्रिडाइजेशन किसकी है, जिसके साथ OH अटैच्ड है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन इज हेयर sp3. ओके, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द, it is over now. Next one we are coming for the vinylic condition, means attachment or compounds containing CsP2OH. मतलब कार्बन की कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट जैसे ये विनिलिक कंडीशन आप देख लो, यहाँ पे OH आ जाएगा. तो ये नाम क्या है इसकी, फेनॉल,
है ना। और सिंपली अगर आपको विनिलिक अल्कोहल चाहिए, सिंपली विनिलिक अल्कोहल चाहिए, तो क्या आपको करना है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उसके साथ अटैच्ड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनिलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो विनिलिक अल्कोहल इज ओवर एंड फेनॉल इज ऑल्सो ओवर, एंड फेनॉल के साथ अगर वन मोर ग्रुप इज ऑल्सो अटैच, सपोज CH3 इधर अटैच्ड है, यहाँ पे OH अटैच्ड है, तो आपको आप किसको प्रेफरेंस दोगे, तो OH को प्रेफरेंस दोगे। और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कौन सा आएगा, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, 2 मिथाइल फेनॉल कंडीशन आ जाएगा। तब इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं ना, ऑर्थोक्रिशल बोलते हैं, ऑर्थोक्रिशल। ये है ऑर्थो पोजिशन, 1-2 पोजिशन ऑर्थो पोजिशन एंड दैट इज ऑर्थोक्रिशल, ठीक है। ये हो गया आपके ऑर्थोक्रिशल। इसको आप 1-2 मतलब 2 मिथाइल फेनॉल भी बोल सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपकी कौन सा कंडीशन, जब OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द डबल बॉन्ड, OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 ये जो है ना कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अच्छा, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द ईथर। तो ईथर में आपके 2 टाइप की ईथर मिलेगा। ईथर की जो फर्स्ट नोमेनक्लेचर अगर हम आ जाए, है ना, ईथर में सिमेट्रिकल ईथर भी हो सकते हैं। एक तो सिमेट्रिकल ईथर और एक हो जाएगा जिसमें सिमेट्रिकल ईथर जैसे क्या होगा, CH3O CH3, दोनों जो अल्काइल ग्रुप है ना, दे आर सेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ईथर। और अगर अनसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल को, इसको हम सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल ईथर भी बोलते हैं, सिंपल ईथर। और नॉन सिमेट्रिकल ईथर अगर आपको चाहिए, तो नॉन सिमेट्रिकल ईथर में क्या जाएगा, जैसे CH3O C2H5। तो इसमें C2H5 मतलब क्या है कि इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वी कैन से द अल्फाबेट इट इज कमिंग फर्स्ट, सो वी आर राइटिंग हियर इथाइल देन मिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, या तो आप और भी लिख सकते हो, जैसे C6H5 C6H5O एक है आपके बुक में, वही मैं दिखा देती हूँ, C6H5O C2H5। तो क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, तो वी हैव टू राइट डाउन देयर, सो वी हैव टू राइट डाउन देयर इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, इथाइल फिनाइल ईथर। समझ में आ गया अभी नेमिंग कैसे आएगा। अच्छा, नेक्स्ट इन योर बुक एक्चुअली इट इज गिवन देयर कि क्लासीफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, और एलिलिक अल्कोहल भी फाइंड आउट करना है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, यू जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द वीडियो यू जस्ट कंप्लीट दैट वन एंड सेंड टू मी। नेक्स्ट वन यू आर कमिंग फॉर द नोमेनक्लेचर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप देख लो इधर कि नोमेनक्लेचर कैसे हम करते हैं। जैसे अल्कोहल वाला इजी है, क्योंकि 2 टाइप की नोमेनक्लेचर होता है, कॉमन नेम और यूपैक नेम। तो कॉमन नेम में कौन सा है, मिथाइल अल्कोहल, और मिथानॉल विल बी कमिंग देयर, CH3OH। यहाँ पे आ जाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेनवानॉल। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये सेकेंडरी कंडीशन आ गए, है ना। तो OH कार्बन के साथ जो अटैच्ड है, दैट इज बोथ द कार्बन, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, मतलब कार्बन अगेन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनटोल, ठीक है, 2 पोजीशन में अल्कोहल। ये हो गया आपकी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल, इनका मतलब नॉर्मल, एंड ब्यूटेनवानॉल। इसमें देखो वही कंडीशन, सेकेंडरी ब्यूटाइल कंडीशन आ गए, है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटेनटोल। और इसके बाद हम आ जाते हैं इधर आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल इसलिए है कि ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग कहाँ पे है, जस्ट सेकंड कार्बन में ब्रांचिंग है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। एंड इसको अगर यूपैक नेम आपको चाहिए, तो ये तो 1 पोजीशन में आ जाएगा, तो 2 पोजीशन में मिथाइल और 2 मिथाइल प्रोपेनवानॉल, ये भी बोल सकते हो। यहाँ पे कौन सा आएगा, टर्सरी ब्यूटाइल, देख ही रहे हो आप। तो टर्सरी ब्यूटाइल तो कॉमन नेम हो गया। यूपैक नेम आप देना है तो 1 2 3, 2 पोजीशन में मिथाइल, 2 पोजीशन में OH, तो 2 मिथाइल प्रोपेनटोल, ये हो गया इसकी। ये तो 1 2 3 क्या हो जाए, ट्राइऑल हो जाएगा, ठीक है ना, ग्लिसरॉल इसका फॉर्मूला। अच्छा, इसमें साइक्लो में कंडीशन क्या आएगा, साइक्लोहेक्सानॉल, OH ग्रुप अटैच्ड है, ये तो बेंजीन रिंग है ही नहीं, साइक्लिक ग्रुप है। ये 2 मिथाइल पोजीशन में साइक्लोपेंटानॉल, ठीक है। इसके बाद आपके पास फेनॉल्स आ जाएगा। फेनॉल में डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होगा, दैट इज फेनॉल, OH ग्रुप अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। यहाँ पे ऑर्थोक्रिशल मैंने पहले ही बोला था, या तो आप इसको 2 मिथाइल और फेनॉल बोल सकते हो, क्योंकि ये इसका प्रेफरेंस ज्यादा आएगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। मेटाक्रिशल, मेटा पोजीशन 1 3 पोजीशन, 1 4 पोजीशन पैराक्रिशल, और उसके हिसाब से 3 मिथाइल फेनॉल या 4 मिथाइल फेनॉल, इसके हिसाब से नेमिंग आएगा। इसके बाद वी कैन से अबाउट द, अगर आपको डाइहाइड्रोक्सी वाला कंडीशन
या 1 2 1 3 1 4, इसमें तो ऑर्थोपैरा दैट इज कंडीशन आ रहे, ऑर्थोपैरा मेटा कंडीशन आ रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेचॉल, है ना। जब ऑर्थो कंडीशन में 2 OH ग्रुप है, 2 मेटा पोजीशन में 2 पोजीशन, दैट इज कॉल्ड रेसोर्सिनॉल, और 1 4 में हाइड्रोक्विनॉल और क्विनॉल बोलते हैं इसको। कभी कभी आते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रेसोर्सिनॉल, है ना। और नॉर्मली आप यूपैक नेम कैसे बोलोगे, बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 3 डाइऑल और बेंजीन 1 4 डाइऑल। इथर्स में आप देख लो नोमेनक्लेचर बहुत ही अच्छा सा इजी भी है, जैसे डाइमिथाइल इथर पहले ही बोल चुके हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर यूपैक नेम है तो हम क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी OCH3 क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है, OR एल्कोक्सी जिसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन C2H5। तो यहाँ पे जो वाला छोटा वाला आएगा ना उसी को ही हम मतलब OR के हिसाब से ले लेंगे, तो मिथॉक्सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी और प्रोपेन। नेक्स्ट वन वी आर कमिंग मिथाइल फिनाइल ईथर, है ना। मिथाइल क्यों आ रहे हैं ना, इसको हम अल्फाबेटिकली पहले ही आएगा, तो इसलिए मिथाइल को पहले ले लेते हैं, फिर फिनाइल ईथर, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। इसके बाद इथाइल फिनाइल ईथर, है ना, फेनेटॉल बोलते हैं, इथॉक्सी, क्योंकि इथॉक्सी बेंजीन को आप ले लो मेन में, और इथॉक्सी आ जाएगा किसमें कि ब्रांचिंग में आ जाएगा और फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, C2C6H5O CH2 होल 6 CH3, तो डेफिनेटली इसको हम फेनॉक्सी ग्रुप ले लेंगे, और होल 6 मतलब ये हेप्टेन कंडीशन हो गया, 6 और 1 7, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 फेनॉक्सी हेप्टेन, है ना। यहाँ पे भी मिथॉक्सी ग्रुप ही आ गए, बट यहाँ पे कौन सा पोजीशन में आए, 2 पोजीशन में मिथॉक्सी एंड प्रोपेन, इसको मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर भी बोल सकते, ये आइसोप्रोपाइल कंडीशन, है ना। इसके बाद आपके पास आ जाएगा, ये तो C6H5 है, और फिनाइल यहाँ पे आइसो पेंटाइल 1 2 3 4 5, तो ये आइसोपेंटाइल कंडीशन हो गया, फिनाइल आइसो मतलब जस्ट सेकेंड कार्बन में जब ब्रांचिंग आ गए, तो फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। और यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका अगर साइंटिफिक मतलब यूपैक नेम आपको बोलना है तो 2 मिथाइल और ब्यूटॉक्सी, 2 पोजीशन में मिथाइल, और कौन सा है ना, इट इज कमिंग अबाउट द, क्योंकि C6H5 को मेन आपको मानना है बेंजीन, तो ये थोड़ा छोटा है, ये 6 कार्बन, ये 4 कार्बन है, तो इसको आपको क्या मानना है, एल्कोक्सी ग्रुप, तो 2 उसमें भी ब्रांचिंग है, इसलिए 2 मिथाइल, ये ब्यूटॉक्सी हो गया 1 2 3 4, और उसके बाद बेंजीन, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन 1 2, यहाँ पे देखो दो मिथॉक्सी ग्रुप है, तो इसलिए कौन कौन सा ग्रुप में, 1 में है, 2 में भी है, तो 1 2 डाइमिथॉक्सी क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन में इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो यहाँ पे मिथॉक्सी OR ग्रुप, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 1, क्योंकि ब्रांचिंग जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट होगा, क्योंकि वो लोएस्ट लोकेशन के हिसाब से, तो 1 1 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इथॉक्सी पोजीशन, तो 2 इथॉक्सी ई पहले आ रही है, इसलिए पहले उसको लिखना है, और उसके बाद 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास एग्जाम्पल एक है, यूपैक नेम आपको फॉलो अप करना है, आप जस्ट गो थ्रू इट, एंड इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको फाइंड आउट करके और सॉल्व करके मुझे भेजना है। क्लियर ना। सो दिस आर द जस्ट ये वाला देखो मैं एक बार समझा देती हूँ। तो ये यहाँ पे पोजीशन कौन सा आएगा ना 1 2 3 4, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वहाँ पे 1 पोजीशन देना है, फिर 1 2 3 4। तो कौन सा पोजीशन में क्लोरीन है 4 पोजीशन में क्लोरीन और 2 3 डाइमिथाइल कंडीशन, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा कौन सा है ये पेंटेन 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 1 ऑल, ये ऐसे आपको नेमिंग करना है। ये मिथॉक्सी वाला कंडीशन देखो, मिथॉक्सी नहीं, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन, तो इसको ही आप ले लो इथॉक्सी कंडीशन OR में, तो इथॉक्सी हो गया। तो कौन सा पोजीशन में इथॉक्सी है 2 पोजीशन में इथॉक्सी है, ये कौन सा है ना प्रोपेन हो गया, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना ही है, तो 1 2 ये 2 पोजीशन आ जाए 2 3 4 5 6, तो 2 6 डाई मिथाइल और ये फिनॉल आ गए। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा ना इथॉक्सी और नाइट्रो, नाइट्रो तो सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा, तो OR ग्रुप क्या है सब्स्टिट्यूएंट में भी है, तो इसमें 1 इथॉक्सी और 2 नाइट्रो है ना, तो नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन ही आ जाएगा, तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट यू हैव टू पुट दैट वन, है तो 1 2 पोजीशन। तो ये हो गया आपकी एग्जाम्पल, दे ऑलरेडी आपको मैंने समझा दिए, बस इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करना है और मुझे भेजना है। दोनों क्वेश्चन मैंने दिए, एक 11.3 और एक मैंने दिया आपको 11.1, जस्ट डू इट एंड सेंड इट टू मी।